Hi friends, welcome to yet another episode of Surkhap Talks. Surkhap Talks is a platform where we encourage people to talk out their issues, to sort out their issues. The reason we have started this platform is that many people keep suffering when they look at any problem with their own perspective. So it is always good to talk it out with, say, a life coach, some elderly in the family, friends, anybody whom you can trust. Just talk it out and maybe you'll get another perspective by which you can create a solution for the problem. So in this series of Surkhap Talks, what we are doing, we are inviting experts from various fields who will help us understand the issues which we are facing in the current times. So we have invited Mrs. Sangeeta Dasgupta, who is a clinical hypnotherapist and a life coach from International Coach Federation. Thank you so much for coming on this show, madam. Thank you very much, Bindu, for inviting me today. Thank you very much. Ma'am, my first question to you is that as human beings, at times we know that we are stuck in life. So we try various ways, which I will ask you how to come out of it. But my first question is that when a person doesn't know only that the person is stuck, and there is this repetitive pattern for years, which is like irreparable. So what is it that a person should watch out and is not stuck in life? So please tell me that when should a person know that the person is stuck now? Right, Bindu. This is a very apt question to begin with. I have always felt that life is a series of ups and downs, and stuck is just a thought in the mind. When I say it's a thought in the mind, I understand that our mind is full of thoughts, and thoughts brings in emotions. When we are stuck, we feel that our energy is going low. We start to feel very lethargic. We feel our energy is stagnant. There is another important point, which is that people don't like to change. वो बस अपने comfort zone में ही बैठना चाहते हैं, and they don't see a future for themselves. They feel that this is where I am and therefore they feel that they are stuck. लेकिन एक बात बहुत important है, बहता पानी ही कलकल है. जब पानी रुक जाता है तब तो उसमें सिर्फ काई ही जमती है, बिंदु. और बहुत एक important point है, which is change. We fear change. See, we have now recently passed the pandemic, and we feared change so brutally that we felt so stuck. हम अपने ही घर के अंदर नहीं safe महसूस कर रहे थे. And I have also come across a lot of people who felt stuck in their own families, who felt stuck in their own businesses. And I have also met so many people who have built bonds beautifully with their family and who have progressed financially very, very beautifully well. So feeling stuck is just inside yourself. तो मैम, मैं आपसे 3 इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स के बारे में बात करना चाहती हूँ जिसमें अक्सर हम स्टक हो जाते हैं. एक है जॉब, रोजी रोटी, दूसरा है रिलेशनशिप और तीसरा है हेल्थ. तो जॉब में जो पहला रीज़न लोग नौकरी छोड़ते भी हैं वो है एक बैड बॉस की वजह से. तो आप मुझको ये बताइए कि कोई एक बैड बॉस आ गया तुम्हारी ज़िंदगी में, ही और शी, और उसने ज़िंदगी दुखी कर दी. अब तुम भेड़ बकरी की तरह सुबह से शाम तक जाते हो और पता नहीं क्या करके आते हो, तब भी लात खा के आते हो. तो अब ऐसे केस में ना उनको नौकरी मिल रही है ना तुम्हें मिल रही है. तो ऐसे केस में रोज़ रोज़ इस दर्द को सहना कितना अच्छा है, और क्या इस दर्द का कोई सोल्यूशन है? बिंदु, ये बहुत ही एप्ट क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसा होता है कि इंसान अच्छे या बुरे नहीं होते. In this case, we really need to understand 2 situations. One, is that boss bad towards me? Okay. या फिर वो बॉस अपनी पूरी टीम के साथ ही ऐसा है. Okay. अब अगर वो अपनी टीम के साथ ही ऐसा है, it's about him. Okay. बट आपका और उसका कौन सा ऐसा तार है जो ऐसा जुड़ रहा है जिसमें आपको बुरा लग रहा है? Okay.
मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज अबाउट मी. देखिए, thoughts are just thoughts. They don't have any emotions, attached to it till the time you have a context or you have a perception. अब अगर बॉस ने मुझे कुछ कहा, मुझे बुरा लगा, पॉसिबिलिटी है कि मुझे कभी भी कोई ऊंची आवाज़ में कुछ कहता है तो मुझे बुरा लगता है. तो देयर इज़ समथिंग नोन एज सोशल कंडीशनिंग. जब हम बड़े हो रहे होते हैं तब 0 से लेके 14 साल की उम्र तक आपका जो मन है, इट इज़ फॉर्मिंग अ फिल्टर. एंड when that filter forms, you have an understanding about right and wrong, good and bad. और उसी में आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ एस्टीम बनती है. तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी खुद ही की सेल्फ एस्टीम लो है, आपको लग रहा है कि मुझे प्रूव करना है, मुझे अपने बॉस को दिखाना है कि मैं सबसे ज़्यादा अच्छा हूँ. दूसरी बात आपने जो कही, रोज़ी रोटी. देखिए, हो सकता है कि मैं बहुत अच्छा कर सकती हूँ, लेकिन मैं ही अपने घर की ब्रेड विनर हूँ. मुझको ही खाना पकाने के लिए वहाँ नौकरी करनी पड़ेगी. मगर क्या वो नौकरी मैं करना चाहती हूँ? क्या वो मेरा पैशन है? मैं हमेशा ऐसा सोचती हूँ कि मेरा पैशन, मेरा पर्पस और मेरा प्रोफेशन अलाइंड होना चाहिए. When these 3 P's are aligned, my life is beautiful. तो मैम आप ये कह रहे हैं कि अगर ऐसा ना हो कि भाई हम किसी ऐसी जॉब में हैं which we are not liking, then there are chances that we may not like our boss also. बिल्कुल सही, बिल्कुल सही. And if that boss only is problematic in the second situation, that the person is same pinch with everybody and he's pinching everybody, he or she, so क्या करें उसमें? तो मैं कहती हूँ बड़ा सा सी, जैसे बोलते हैं ना, डोंट कंडेम, डोंट क्रिटिसाइज, हैव कंपैशन. देखिए, पहले वाले एग्जाम्पल में बी कंपैशनेट टू योर सेल्फ, परफेक्ट. बट दूसरे वाले एग्जाम्पल में बी कंपैशनेट टू योर बॉस. बॉस का भी तो बॉस होगा, उसको भी ऊपर से प्रेशर होगा कि भाई इतना टारगेट अचीव करना ही है. या कुछ भी और हो सकता है, कुछ भी और हो सकता है. हो सकता है कि उसके घर में उसकी EMI, उसकी मर्सिडीज की उसके सर पे हो. देखो, उसको प्रेशर है, उसको स्ट्रेस है. आप स्ट्रेस मत लीजिए, अदरवाइज समझिए, ओ आई एम स्टक बिकॉज ऑफ दिस पर्सन. इट्स नॉट अबाउट हिम, इट्स अबाउट यू. देखिए, क्या आप हमेशा से यही करना चाहते थे? अगर नहीं तो break free and you will get a breakthrough. So friends, it is very important that we talk about this issue and understand it. We do not keep suffering with it, because क्या होता है, अब ये जैसे मैम ने बताया कि हमारी बचपन से अपब्रिंगिंग में कुछ होगा जो हम लेके अभी चल रहे हैं, तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप एक दूसरे का पर्सपेक्टिव भी ले लें. यू कैन जस्ट कॉन्टैक्ट मे बी एन एक्स बॉस ऑफ योर्स, सम गुड कोलीग whom you can trust, friends, relatives, take professional help अगर इतना ही ज़्यादा इशू हो गया है, but please do not keep it to yourself alone. Okay, so talk it out and sort it out. So मैम, अब एक क्वेश्चन का आंसर करिए कि कुछ बच्चे जो होते हैं वो कॉल सेंटर में काम करते हैं, उनकी रात की नींद डिस्टर्ब होती है. मैंने बहुत सारे हेल्थ प्रोफेशनल्स को देखा है जिनका शिफ्ट आवर्स इतने क्रेजी हो जाते हैं कि इसमें हम कोई मेंटल और फिजिकल ख्याल नहीं रख सकते, हम बस चलते जाते हैं जब तक हम अपनी मशीन को चला सकते हैं. तो मैम, इन लोगों के लिए क्या सजेशन है? बिकॉज व्हाट आई एम सीइंग इज दैट कुछ टाइम में, बहुत यंग एज में एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो रहा है, या मेंटली इतना फटीक हो जाते हैं कि वो स्पिरिट ही ख़त्म हो रही है. तो इसमें आप कुछ बताइए कि कैसे, अब नौकरी तो करनी है. बिल्कुल सही कहा बिंदु, लेकिन एक चीज़ होती है बर्नआउट, और बॉडी से ज़्यादा मन को पता होता है उसके साइंस. तो जैसा कि आपने कहा और हमने डिस्कशन की शुरू में, दैट योर बॉडी इज़ मेड अप ऑफ एनर्जी, और वो जब एनर्जी लो हो रही है, फटीग हो रही है, तो आप इतना लेथार्जिक फील कर रहे हो कि आप
उस काम को पूरी श्रद्धा से कर ही नहीं पा रहे हो। हाँ जी। देखिए, जैसे बॉडी की शक्ति होती है, ऐसे ही मन के अंदर 4000 मैसेज यूनिट्स इन अ मिनट लेने की क्षमता होती है। अच्छा। इसका मतलब आपके मन के जो पानी का गिलास है उसमें से भी पानी छलकने से पहले आपको पता होना चाहिए। हाँ जी। तो जो कॉल सेंटर एग्जीक्यूटिव्स होते हैं या ट्रेनर्स होते हैं या मेडिकल हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स होते हैं, इंडियन आर्मी के सोल्जर्स होते हैं, वो ट्रेंड होते हैं कि 10,000 मैसेज यूनिट्स इन अ मिनट किस तरीके से लेना है, लेकिन उसके बाद भी तो वो प्याला छलकेगा। हाँ जी। तो इसीलिए इसी कारण से शिफ्ट सिस्टम बनाया जाता है। तो आपको बहुत ज़रूरी है कि आप शिफ्ट्स में काम करिए। देखिए, सेवा करने के लिए भी आपको इस व्हीकल का, इस शरीर का ध्यान रखना पड़ेगा। तो आप अगर 8 घंटे की नींद नहीं ले सकते हैं तो आप कम से कम 20 मिनट का नैप लीजिए। ओके। देखिए, अगर आप आज भी कॉर्पोरेट्स में देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल गूगल, दे हैव स्लीपिंग कूपेज, पीपल गो देयर, स्लीप 15-20 मिनट्स, दे एनर्जाइज देमसेल्फ, रिचार्ज, और फिर वो काम पे जाते हैं। ओके। अगर आप वो भी नहीं कर सकते हैं तो माइंडफुलनेस, रैदर लर्न मेडिटेशन। अगर आप ध्यान करना सीखेंगे तो आपकी बॉडी जो है वो धीरे धीरे जो आपकी ब्रेथ है उसकी साइकिल को स्लो करेगी और आपके शरीर के अंतड़ियों में, पेट की अंतड़ियों में और शरीर की सेल्स के अंदर ज़्यादा एनर्जी भरेगी। ओके। ऑल्सो मैं पिछले 12 सालों से एक तरीके की एक्सरसाइजेस करती हूँ जिसको मैं कहती हूँ एनर्जाइजेशन एक्सरसाइजेस। ओके। ये एनर्जाइजेशन एक्सरसाइजेस केवल 12 मिनटों की होती हैं और मैं पूरा दिन, और मेरा दिन जो होता है वो 6 बजे शुरू होता है और 11, साढ़े 11 तक चलता है। ओके। और जितनी एनर्जी सुबह होती है उतनी ही एनर्जी रात को होती है। तो कहने का मतलब ये है कि आप किसी भी प्रोफेशन में हो जिनके लॉन्ग आवर्स हो, वहाँ पे आप मेडिटेशन हो गई, योगा हो गई, या किसी भी तरीके की आपकी बॉडी मूवमेंट हो गई, आप उसको ज़रूर करिए। बर्नआउट से पहले उसके सिम्टम्स का ध्यान रखिए, रिचार्ज करिए अपने सेल्स को, फिर सेवा करिए, परफेक्ट, फिर अपना काम करिए। हाँ जी, परफेक्ट। हाँ, अच्छा मैम, अब एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट, बहुत सारे लोगों ने कोविड के टाइम में सोचा कि हम ये बिज़नेस शुरू करेंगे, वो करेंगे, लेकिन हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आई कि भाई पैसा नहीं है, या अभी की ईएमआई इतनी हाई है कि जो पैसा मिलेगा वो कवर नहीं कर पाएंगे ईएमआई से, या इतना ज़्यादा फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं कि ये रिस्क ही नहीं ले सकते कि कहीं फेल हो गया तो अब ये सेम फॉर मेन एंड फॉर वुमेन एक ये रहा कि लोगों के पास बहुत बिजनेस आइडियाज़ हैं, लोग बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन वो जो कंफर्ट ऑफ नौकरी है, ऑफ दैट मनी, नौकरी का कंफर्ट नहीं है, पैसे का कंफर्ट है, उसको छोड़ के कुछ कर नहीं पा रहे। इसी में कुछ कैटेगरी के लोग ऐसे भी हैं जिनके पास कहीं से कोई इनकम नहीं आ रहा और बस वो आइडियाज़ आ रहे हैं, लेकिन वो स्टक हैं दोनों केसेस में। तो आप इस पे एक बताइए कि जो एग्जिस्टिंग हैं उनको क्या करना चाहिए, जिनके पास पैसे आ रहे हैं फिर भी स्टक हैं, और जो नहीं आ रहे जिनके पास बिल्कुल भी, वो भी स्टक हैं। देखिए, ऐसा है कि पेंडेमिक में अगर आपने देखा हो तो बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ इंक्लूडिंग हार्वर्ड यूनिवर्सिटीज़ ने बहुत सारे कोर्सेज ऑनलाइन फ्लोट कर दिए थे। इनफैक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक ऑर्गेनाइजेशन है विच इज़ नेशनल स्किल डेवलपमेंट, हाँ जी, विच मीन्स कि आपको अपना स्किल डेवलप करना पड़ेगा। ओके। आपका पैशन कौन से फील्ड में है, आप रात को तो सपने देखते हो, लेकिन दिन में खुली आँखों से जब आप सपना देखते हो, उसको आप कौन से स्किल से पॉलिश करके, तराश के, और फिर उसको फ्लोट करते हो। मैंने ऐसे बहुत सारे बिजनेसेस फ्लरिश होते हुए देखे हैं इस पैंडेमिक के दौरान, जो कि पहले नहीं थे। हाँ जी। तो इसका मतलब
फ्यूचर देखो और देखो कि इस समय दुनिया में क्या हो रहा है। ओके। एम्पावरमेंट, सशक्तिकरण बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़, जिनके पास आइडियाज़ हैं और पैसे नहीं है, जैसा कि आपने कहा, देखिए बहुत साल पहले, मतलब हो गए 22-25 साल, मैंने अपना काम बिना पैसों के स्टार्ट किया था, सिर्फ स्किल से, सिर्फ आइडियाज़ से। तो क्योंकि हम बात कर रहे हैं टू कम आउट ऑफ दैट फीलिंग ऑफ फीलिंग स्टक, इसका मतलब वो कहाँ है? थॉट में है। कभी ना कभी तो इंसान को रिस्क लेना ही पड़ेगा, अपने आप पर, स्वयं पर विश्वास रखना ही पड़ेगा। इसका मतलब अगर आपके पास वो आइडिया है, उसको एग्जीक्यूट करिए प्रॉपरली। आपने एक प्रोजेक्ट प्लान नहीं बनाया है। तो मैंने ये सीखा है और मैं ये देखती भी हूँ जब मैं कोचिंग करती हूँ कि एक चीज़ होता है स्मार्ट गोल बनाना। स्मार्ट क्या है? S स्टैंड्स फॉर स्पेसिफिक। मेरा कौन सा ये गोल है, स्पेसिफिक मुझे क्या करना है। आइडियाज़ मेरे 1000 है, मैंने ब्रेनस्टॉर्म किया है, लेकिन स्पेसिफिक क्या है। उसके बाद मेजरेबल है कि नहीं, मतलब मैं इसको मेजर करके देख सकती हूँ कि इसका क्या आउटकम होगा। अचीवेबल है कि नहीं, अच्छा ये सिर्फ मैं सोच रही हूँ कि हो सकता है, या वाकई में अचीवेबल है कि नहीं। रियलिस्टिक है कि नहीं, मैं केवल मुंगेरी लाल के हसीन सपने तो नहीं देख रही हूँ। और टाइम बेस्ड बहुत ज़रूरी है। टाइम, अगर आपने वो बिजनेस आइडिया आज इसी समय फ्लोट नहीं किया, तो कहते हैं कि सेम बिजनेस आइडिया यूनिवर्स में फ्लोट कर रहा होता है एक ही समय में, कम से कम और 10 लोगों में। तो अगर मुझे एक आइडिया आया है कि मुझे इस विषय पे किताब लिखनी है, और मैंने कहा अच्छा मैं कल करूँगी, परसों करूँगी, एंड आई एम फीलिंग स्टक, नहीं हो रहा है, मैं क्या करूँ, अच्छा इस पे लिख लूँ, उस पे लिख लूँ। आप देखोगे जब तक आप सोच ही रहे होगे, उस नाम की, उस विषय की किताब मार्केट में होगी। टेक द एक्शन नाउ। वो जब हम वो बनाते हैं ना, जब छोटे बच्चे भी बनाते हैं, हम भी बचपन में बोट बनाते थे छोटे छोटे पूल्स में, तो वो इस तरीके से फंस जाती थी। फिर हम क्या करते थे, वो एक डंडी लेते थे, उससे इस तरीके से करते थे, वो बोट की नदी बनती थी। तो अपने आइडियाज़ की नदी बनाओ, स्मार्ट गोल्स बनाओ। तो मैम जो फियर्स हैं, कई दफ़ा बहुत फियर्स हैं ये, तो इस फियर को कैसे एड्रेस करना है? क्योंकि वो डर के आगे जीत है तो अच्छा लगता है टीवी पे, बिल्कुल, लेकिन नहीं हो रहा। डर के आगे भी बहुत सारे डर हैं। बिल्कुल, तो क्या करें कि हम ये फियर से बाहर निकलें? बिल्कुल, देखो फियर जो है उसका कोई ना कोई तो बेसिस होता है। इसका मतलब आपने पहले कुछ किया होगा जो कि अब आप नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आपने पास्ट में उसको फेलियर के रूप में अपने मन के अंदर, मस्तिष्क के अंदर जमा लिया है। सो नाउ इट्स देयर, और वो जो फियर है अब वो आपको प्रताड़ित कर रहा है। इट्स पुशिंग यू। सो इट्स नॉट द फेथ, इट्स द फियर। बच्चा जब पैदा होता है ना, हम हमेशा सोचते हैं कि माँ को कितनी तकलीफ होगी। कभी ऐसे सोचा है कि बच्चे को कितनी तकलीफ होगी? वो भी तो 9 महीने उस कंफर्ट जोन में था। करेक्ट। लेकिन हर एक माँ को और आपको और मुझको आज के जीवन में इस समय पर फेथ है। यू हैव टू हैव कंप्लीट फेथ। ग्रेट। फियर जब तक आपको पुश करेगा, प्रोपेल करेगा, आपकी नाव जो है वहीं अटकी रहेगी। देखिए, फियर जो होता है उसको आपको फेस करना ही पड़ेगा। तो जब भी आपको ऐसा लगे कि आपको डर प्रोपेल कर रहा है, तो प्लीज़ रुकिए। टॉक टू योर फैमिली, टॉक टू योर फ्रेंड्स। ऐसे कुछ दोस्त होते हैं ना बिंदु, कि जो आपकी बात सिर्फ सुनते हैं। हाँ। वो आपको बहुत ज्ञान नहीं देते। हाँ। लेकिन वो आपको एक स्पेस देते हैं, बहुत ऑथेंटिक होते हैं, और फिर आप आगे बढ़ जाते हो।
हाँ। अगर फिर भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हो तो फिर वो डर जो है वो बहुत गहरा है, वो डर नहीं, दैट्स नॉट अ फियर, देन दैट इज फोबिया. एंड इफ यू रियली हैव अ फोबिया ऑफ डूइंग समथिंग, देन यू रियली नीड टू टेक प्रोफेशनल हेल्प. अच्छा मैम, अब एक बहुत सेंसिटिव सा इशू है जो मैं बहुत यंगस्टर्स में भी देख रही हूँ और उन लोगों में भी देख रही हूँ जिनकी सेकेंड मैरिज है, कि वो फिर से वैसे ही रिलेशनशिप में हैं जिसमें कि वो बहुत ही टॉक्सिक, थोड़ा हायर वर्ड हो जाएगा, बट ये लगा लीजिए कि अनहैप्पीनेस तो है ही, सैडनेस तो है ही. तो अब क्या है कि एक यंग एज में एक बच्चा है जो एक ऐसे लिव इन में है या किसी फ्रेंड के साथ है या किसी पार्टनर के साथ है जो हमेशा एक तरीके से यूज़ हो रहे हैं, और यू नो एवरी डे देयर इज़ सम इशू वेयर द पर्सन विल टेल यू दैट यू आर एन इडियट, एंड वो उस यंग एज में वो बच्चा उसको ले रहा है. उसी तरीके से कुछ दोस्त ऐसे हैं जो सेकेंड मैरिज करना चाहते हैं लेकिन उन्होंने रेप्लिका अपने फर्स्ट वाइफ का ही या फर्स्ट हस्बैंड का ही लिया है, जिस ट्रेट्स को वो नहीं पसंद करते थे. कई दफ़े तो वो बड़े मैग्नीट्यूड में आ गई हैं. तो मैम इन पे कुछ बताइए कि क्या कर सकते हैं कि यू नो दे डू नॉट गेट स्टक इन सच रिलेशनशिप. बिंदु, ऐसा होता है कि हमारे ब्रेन में नर्व्स होती हैं, तो हम कहते हैं नर्व्स विच फायर टुगेदर वायर टुगेदर. इसका मतलब ये है कि हम अपने लाइफ के अंदर पैटर्न्स बनाते हैं और वो पैटर्न्स हमारे ही लाइफ में हमारे ही ब्रेन के थ्रू बनते हैं. ओके. बट माइंड में जो थॉट्स चल रही होती हैं वो खुद को लेकर ही होती हैं. तो मान लीजिए कि आपका एक रिलेशनशिप अच्छा नहीं चला और आपका डिवोर्स हो गया, या आप एक ऐसे अब्यूजिव रिलेशनशिप में हैं जिसमें से आप बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं, और आपने हिम्मत करके वो ले भी लिया स्टेप, बाहर निकल भी गए, फिर आप दूसरी शादी या दूसरे पार्टनर को ऐसा ही अट्रैक्ट कर रहे हो, वही चीज़ देख रहे हो जो पहले में थी. इसका मतलब you have not taken the learnings from the first relationship. ओके. देखो, हमारा जो माइंड है वो फियर के बाद गिल्ट में जाता है. ओके. मैंने ऐसे पहले कर लिया होता तो. हाँ. तो आप एक रिलेशनशिप में हैं लेकिन आप सोच रहे हो कि मैंने वो कॉलेज वाले लड़के से ही शादी कर लेती हो तो वो बेहतर था. अब तो ऐसा ही है, दूसरा भी ऐसा ही है, और अगर कोई तीसरा आया तो वो भी वैसा ही होगा. इसका मतलब प्रॉब्लम इज वेयर इन माय सबकॉन्शियस माइंड. परफेक्ट. My subconscious mind forms data files which form belief systems. So it is like I am not good enough. People don't love me. I am unlucky. और आपका जो सबकॉन्शियस माइंड होता है वो 6000% बड़ा होता है आपकी कॉन्शियस माइंड से. मतलब अवचेतन मन के अंदर वही थॉट प्रोसेस 6000% बड़ी हो जाती है. तो आपका नेक्स्ट रिलेशनशिप भी ज़रूर वैसा ही होगा जैसा पहला था. परफेक्ट. उसका चेहरा अलग होगा. हाँ. जब तक कि आप समझोगे नहीं कि इस रिलेशनशिप में मेरी क्या लर्निंग है. ओके. आई नीड टू लर्न टू बी कम्युनिकेटिव. मुझे अपना सत्य बोलना है. आई हैव टू स्टैंड फॉर माई सेल्फ. मुझे अपने आप को प्रूव नहीं करना है. कहीं ना कहीं मेरे ही थ्रोट में, मेरे ही कंठ के अंदर वो सत्य जो है उसको मुझे बाहर निकालना है. ओके. सो वेरी इंपॉर्टेंट टू ब्रेक दैट पैटर्न, क्रिएट अ न्यू पैटर्न. ब्यूटीफुल. बहुत ज़रूरी है. So friends, the most important thing is, again, you should not get stuck with any relationship which makes you feel worthless, useless. बहुत पुरानी कहावत है, 2 घूंट शहद और 100 कोड़े. ऐसे किसी रिलेशनशिप में मत रहो. ओके. इनफैक्ट बिंदु, मैं ये कहना भी चाहूँगी कि इनको ना को डिपेंडेंट रिलेशनशिप्स बोलते हैं. हमें ऐसा लगता है कि एक रिलेशनशिप ताले और चाबी की होती है, विच मीन्स 2
imperfect people comes to make a perfect relationship. आप मुझे पूरा करते हो, कोई किसी को पूरा नहीं करता है. You have to first feel whole and complete in yourself. You have to first love yourself. तभी आप अपने पार्टनर के अंदर वो चीज़ देख पाओगे जो आप खुद में देखना चाहते हो. तो मैम अब आप मेरे उन भाइयों के लिए भी कोई मैसेजेस दे दीजिए जो कि बहुत टॉक्सिक रिलेशनशिप में अटके हुए हैं, हर दिन पिटाई हो रही है तो उनको क्या सोचना चाहिए? क्योंकि क्या है, मैं बहुत लोगों से मिल रही हूँ जिनका सेल्फ वर्थ बहुत ही लो हो गया है बिकॉज समबडी हैज सोल्ड देम दिस आइडिया दैट यू आर यूजलेस. तो उनको क्या करना चाहिए? डोंट टेक देयर आइडिया. बेस्ट थिंग नो. तो जैसा कि आपने कहा भाइयों को, सी भाई और बहन, men and women, masculine and feminine, they are the same faces of the same coin, two faces of the same coin. देखिए, अगर आदमी ये ना सोचे कि मेरा ही ये काम है और औरत ये ना सोचे कि मेरा ये काम है, बशर्ते कि वो ऐसा सोचे कि हम एक ही गाड़ी के दो पहिए हैं. आपने पेंडेमिक के दौरान देखा कि कोई किसी का काम ऐसे नहीं कर रहा था, घर में सभी सबका काम कर रहे थे. तो अगर आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो, इसका मतलब आपकी बाउंड्रीज जो हैं वो बहुत इंटरमिंगल कर रही हैं. कम्युनिकेशन बिल्कुल भी पारदर्शी नहीं है. द वुमन इज वांटिंग टू से समथिंग, वो चाहती है कि भाई इसी तरीके से काम हो. आदमी को वो बात समझ में नहीं आ रही है, आदमी अपनी बात को कह नहीं पा रहा है, आदमी अपने आप को प्रूव करने की कोशिश कर रहा है. तो कम्युनिकेशन नीड्स टू बी वेरी वेरी टू वे. ऐसा नहीं है कि आप चुप रहेंगे या आप बहुत ऊंची आवाज़ में बोलेंगे. यही होता है आमतौर पे. तो आप भी अपनी बात रखेंगे. अगर आपकी पार्टनर को ये बात समझ में आ रही है, बहुत अच्छी बात है. नहीं तो आप निकलिए इस रिलेशनशिप से. यू हैव टू बी क्लियर कि ये टोन, ये पिच, ये जो बात हमारे बीच में हो रही, ये ठीक नहीं है. बहुत इम्पॉर्टेंट बात होती है. अगर आप एक रिलेशनशिप में हो तो आदमी भी औरत की तरह बच्चों की वजह से वो पहला कदम नहीं उठा पाते हैं. सी, एज आई टोल्ड यू, वाइल ग्रोइंग अप फ्रॉम 0 to 14 years, a child is building a critical filter in his or her mind. और वो critical filter build up कैसे हो रहा है? पेरेंट्स को देख के. तो क्या आप एज अ फादर अपने बच्चे के लिए गलत रोल मॉडल दिखना चाहते हो? नहीं दिखना चाहते ना. आप भी सच्चाई के लिए खड़े होइए, औरत की कद्र कीजिए, उसकी बात सुनिए. लेकिन अगर उस टॉक्सिसिटी में ही पड़े रहेंगे तो फिर आप स्टक हो जाएंगे. जैसा मैंने कहा कि माइंड के अंदर जो थॉट्स होती हैं वो प्रबल होती हैं. यू डिजर्व अ ब्यूटिफुल लाइफ, योर चाइल्ड डिजर्व्स अ ब्यूटिफुल लाइफ. अगर आप एक बुरे बॉस को छोड़ के दूसरी नौकरी छोड़ सकते हैं तो आप एक ऐसी रिलेशनशिप को ठीक भी कर सकते हैं या उस रिलेशनशिप में से बाहर भी निकल सकते हैं. चॉइस इज योर्स. Perfect, ma'am. So guys, we have to understand that we have that choice, we have that power. ये नहीं है कि भाई आज कुछ गलत हो गया तो कल हम छोड़ दें, लेकिन ये भी नहीं है कि हम जिंदगी भर उसी में स्टक रहें और अपने आप को तबाह कर लें. तो प्लीज़ अगेन आई विल से, टॉक इट आउट, सॉर्ट इट आउट. तो मैम इसी सब्जेक्ट पे एक क्वेश्चन है उन फ्रेंड्स के लिए जिनके पास आज की डेट में नौकरी नहीं है. फॉर सम रीज़न उनका बिजनेस ख़त्म हो गया है, एब्सोल्युटली नो सोर्स ऑफ इनकम इज़ वन. कई तो इस पोजीशन में भी हैं जिन्होंने कर्जे ले लिए दोस्तों से, क्रेडिट कार्ड यूज़ कर लिया, और अब वो जिस जंक्चर पे है उसमें बहुत सारे ऐसे रिलेशनशिप के ऊपर वो अटक रहे हैं जहाँ पे उन्हें हेल्प लेनी पड़ रही है उनसे. तो अगेन इट्स अ वेरी स्टक सिचुएशन, वेरी सैड सिचुएशन. तो इन लोगों के लिए आप कुछ बताइए. देखिए, ये बहुत ज़रूरी है कि आपके अंदर कितना करेज है. मैं देखती हूँ हमारे घर के नीचे शाहिद नाम का लड़का है, वो सुबह 9 बजे आता है और रात को 9 बजे तक पेड़ के नीचे सिलाई करता है.
मैंने अभी एक और चैनल पे देखा था कि एक हस्बैंड और वाइफ जिनकी दोनों की नौकरी चली गई है, वो चाय का ठेला लगाकर खड़े होते हैं। इनफैक्ट इनकी तो नौकरी चली गई थी, मैंने ऐसा पढ़ा, लेकिन मैंने अभी मार्केट के अंदर IIT ग्रेजुएट को देखा जिसके कियोस्क का नाम, हम अपने हिंदी भाषा में तो ठेला कहेंगे, कियोस्क का नाम था 28 डिग्री। और वो बहुत अच्छी चाय, कॉफ़ी, सारे ड्रिंक्स बनाकर बेच रहा है, जैसा कि आपको एक मॉल में मिलेगा। मैंने उनसे पूछा 28 डिग्री ही क्यों? तो ही सेड दैट इज़ द ऑप्टिमम लेवल ऑफ टेम्परेचर जिसमें इंसान की बॉडी एकदम सही रहती है। वाओ, आपको और मुझे शायद नहीं पता होगा, हम तो 16 डिग्री रखते हैं एसी में, और जब हम पेंडेमिक के दौरान थे तब बोलते थे कि एसी मत चलाइए, लेकिन 28 डिग्री टेम्परेचर है। इसका मतलब क्या हम जब बहुत ज़्यादा कर्जे में डूबे हो, क्या हम जब हमारा जो भी साधन है कमाई का वो चला गया हो, हम कुछ ऐसा कर सकते हैं जो हमने कभी सोचा ही नहीं था कि हम नहीं कर सकते? मैम इसमें ये भी हो सकता है, जैसे मिडिल क्लास फैमिलीज़ के आजकल खर्चे बहुत ज़्यादा है, बच्चे का स्कूल का पैसा बहुत ज़्यादा है, या खुद का लाइफस्टाइल ही इतना ज़्यादा होगा कि उनको लगता होगा कि एक चाय के ठेले से शायद चलेगा नहीं। तो क्या करना चाहिए उन्हें? वो भी एक फियर है कि भाई हम कुछ तो करें अब, लेकिन हम सिलाई तो नहीं कर सकते, या कर भी लेंगे तो हमें पैसा इतना नहीं आएगा। तो ऐसे सेगमेंट में हम क्या कर सकते हैं बेलिया भाई? देखिए, ऐसा है, मैं ये कहती हूँ कि रात को 2 बजे अगर आपको कोई मुसीबत हो तो आपके 10 दोस्त होने चाहिए जो आपके एक बुलाने में, एक फ़ोन कॉल करने में आ जाएं। तो हेल्प रिसीव करना भी एक बहुत अच्छी और बड़ी बात होती है। दूसरी बात, हम बहुत जल्दी अपने हथियार डाल देते हैं। वी नीड टू रियली अंडरस्टैंड कि आपने कोई भी काम शुरू किया हो एज अ बिजनेस, उसको कम से कम 3 साल देने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने आज चाय का ठेला लगा लिया है, वो आपको 6 महीने में, 1 साल में रिटर्न्स देने लगेगा। तो अगर आपने 3 साल तक सेम बिजनेस को सेम पैशन से आगे करते हैं तो आप प्रॉफिट्स देखेंगे। प्रॉब्लम क्या है बिंदु, कि हमारे पास कुछ नहीं है और हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं। ब्रेन मल्टीटास्क नहीं कर सकता, ब्रेन की क्षमता मोनोटास्किंग की है। एक ऐसा काम शिद्दत से करिए, इतनी शिद्दत से करिए कि वो आपको रिजल्ट्स देने लगे। स्वामी विवेकानंदा जी भी ऐसे कहते थे, फोकस ऑन दैट वन गोल डे एंड नाइट टिल यू अचीव द रिजल्ट्स। फिर देखिए, आप कोई भी काम करेंगे उसमें आपको प्रॉफिट्स होंगे ही होंगे। किंतु हम इसलिए भी स्टक होते हैं बिकॉज वी डू नॉट चेंज विद द टाइम्स। देखिए, अगर आप समय के साथ बदलोगे नहीं, अपने काम करने का तरीका और अपने स्किल सेट्स को पॉलिश नहीं करोगे, आप उस चीज़ को नहीं करोगे जो आज के ज़माने में ज़रूरत है, देन ऑल्सो यू विल बी स्टक। देख लीजिए, हमें पता है कि सब्ज़ी वाले के पास भी आज पेटीएम होता है। करेक्ट। तो अगर हम वो काम कर रहे हैं जो कि 10 साल पुराना है और सोच रहे हैं कि उसी काम को हम आज करके अपने आप को अमीर कर सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं, पॉसिबल नहीं है। जो लोग ऑनलाइन नहीं शिफ्ट हुए, जिन्होंने ऑनलाइन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपनाया नहीं है, वो एक कदम पीछे रह गए हैं। तो आपको ये भी सोचना पड़ेगा कि आप जो काम कर रहे हैं वो आज के ज़माने में, न्यू एज जनरेशन में, न्यू एज के काबिल है या नहीं है। दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो फ्रेंड्स, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैसेज इज़ एक्शन में रहना है लाइफ में। ये नहीं है कि भाई अब नौकरी चली गई, यहाँ से पैसा नहीं आ रहा तो बस बैठ जाओ, क्योंकि वो भी एक आदत बन जाएगा। डर तो रोज़ बढ़ता चला जाएगा, तो वो भी एक आदत बन जाएगी कि भाई अब नहीं आ रहे तो क्या हुआ, कोई दे दे। तो वॉट एवर लिटिल यू कैन डू, यू जस्ट स्टार्ट डूइंग इट एंड डेफिनेटली प्रॉफिट होगा ही, लेट अस बिलीव सो। तो मैम, अब एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट जो एड्रेस करना है वो ये है कि अब ज़िंदगी में जब इतने स्ट्रेस इश्यूज़ हो जाते हैं
और इस वजह से अभी मैं 3 से 4 लेती हूँ मेजर डिजीज़ेस, जो लाइफस्टाइल डिजीज़ेस कह लो या कुछ भी उसको आजकल हम लोगों ने अंग्रेज़ी दे रखी है, मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर, हार्मोनल इम्बैलेंस एक्सेट्रा, इन्फ्लेमेशन इज़ हाई। तो उसमें आपका आ गया बीपी, आपका थायराइड, शुगर, बहुत सारे लेडीज़ में फाइब्रॉइड, आर्थराइटिस इज़ वेरी कॉमन नाउ। तो अब आ गया ये, अब हमने नहीं ख्याल रखा और अब ये आ गया। तो इसके क्या रीज़न्स हो सकते हैं और कैसे इसको एक हम अवॉइड कर सकते हैं या कैसे अब हम इसे मैनेज कर सकते हैं? देखिए बिंदु, क्या होता है, आपका थॉट्स, आपके विचार आपके इमोशंस बनाते हैं। आपके इमोशंस आपकी एनर्जी में आते हैं और वो एनर्जी आपकी बॉडी में आती है। मान लीजिए कि आपको आइसक्रीम बहुत पसंद है, आइसक्रीम आपको खाना बहुत पसंद है, तो मुस्कुराहट आ जाएगी ना चेहरे पे। ऐसे ही अगर आपको आपके पापा बहुत डांटते हैं या ऑफ कोर्स आपके हस्बैंड के साथ रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, तो वो थॉट प्रोसेस धीरे धीरे आपके इमोशंस के अंदर जो है जमते जाएंगे एंड दैट इज वेयर इट गेट्स स्टक। समझने की बात यह है कि इफ़ यू थिंक same kind of negative thoughts for a period of more than 3 to 6 months, it will come into your body as a disease. Okay. अब आपने जिनको नाम लिया, आपने बोला बीपी, ब्लड प्रेशर। ब्लड के अंदर प्रेशर क्यों बढ़ता है? जब आपके मन में पुराने ख्याल चलते रहते हैं, मेरे जेठ ने ऐसे बोला था, मेरे दोस्त ने ऐसे बोला था, मेरे बच्चे ने मेरे को ऐसे बोला था, तो जिसने भी जो मुझे ऐसे बोला था मेरे पास्ट के अंदर और मैं नहीं कर पाई या कर पाया, will cause a stress on your nerves, causing the blood pressure to rise. माइग्रेन क्यों होता है? क्योंकि हम कोई भी लाइफ के डिसीजंस ले नहीं पाते हैं। औरतें क्या बोलती हैं? नौकरी करें, कैसे करें, बच्चे देखने हैं, घर देखना है। हस्बैंड क्या सोचता है, मुझे ये वाली जॉब कंटिन्यू करनी है या बिजनेस करना है। तो जब आप अपनी लाइफ में चॉइसेस नहीं ले सकते हैं, झूलते रहते हैं, माइग्रेन हो जाता है। फाइब्रॉइड्स कहा आपने, फाइब्रॉइड्स वो सिस्ट हैं जो कि औरत के यूट्रस में बनती है। When the woman continues to think, मुझे अपना बेस्ट करना है, मुझे ही नर्चर करना है। फैमिली के अंदर सभी एक दूसरे को नर्चर करते हैं, लेकिन अगर आप एक ऐसी फैमिली के अंदर स्टक हैं जहां आप ही के ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और आप अपने आप को प्रूव करने में लगे हुए हो, फाइब्रॉइड्स हो जाते हैं। डायबिटीज़ तो मेनस बनी हुई है। व्हाट इज़ डायबिटीज़? आपको अब मीठा नहीं खाना है ना, इसका मतलब आपने ही अपनी ज़िंदगी में इतनी कड़वाहट घोल ली है that you have lost the sweetness in your life. So these diseases are nothing but your mind is not at ease. Okay. Your mind is stuck into those thoughts जो कि नेगेटिव है, नकारात्मक है। और धीरे धीरे आप जब रोल बैक करोगे, आप देखोगे कि ये रिवर्स होती जाएंगी। तो एक आप बताइए कि ये एक तरीका आप कर सकते हैं जिससे कि यू कैन मेंटेन एटलीस्ट ऑप्टिमम हेल्थ। देखिए आजकल तो डायबिटीज़ रिवर्सल प्रोग्राम्स हैं। हाँ जी, इज़न्ट इट? तो हम रिवर्सल कैसे करते हैं? जब हम अपनी लाइफ को वैसे ही जीते हैं जैसे कि हम बच्चे थे। कोई प्रेशर नहीं है। वी आर नॉट इन टू द एक्ट ऑफ डूइंग। हम उस रैट रेस से बाहर की ओर निकल रहे हैं एंड वी आर इन टू अ स्पेस ऑफ बीइंग का मतलब ये नहीं है कि भाई आप चद्दर टानो और सो जाओ। बीइंग का मतलब ये है कि आप जितना जो जब जैसे कर सकते हैं करिए। जड़ मत बनिए, चेतना में रहिए। दैट इज़ वॉट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। मेडिटेशन करिए, अपनी लाइफ को स्लो डाउन करिए,
अगर आपको एक्शन करना ही है तो बाहर जाइए, वॉक करिए, जॉग करिए, फैमिली के साथ खेलिए, टाइम स्पेंड करिए, वो खाना खाइए जो कि पेड़ पौधों से फ्रेश आता है, कच्चा आता है, रॉ आता है। वो तेल इस्तेमाल करिए जिसको हम खाकर बहुत ज़्यादा एक्टिव फील करें, ना कि हम उस तेल को गरम करके उसमें पूड़ियाँ तलें और अपने आप को हार्ट डिजीज़ दें। तो वो करिए जो एक नेचुरल स्टेट में आप कर सकते हैं और रह सकते हैं। फिर देखिए आपकी सारी डिजीज़ जो है रिवर्स होती जाएंगी, होती जाएंगी, होती जाएंगी। परफेक्ट मैम। सो फ्रेंड्स, एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ हमने समझी है कि एनी विच वेज ये डिजीज़ेस तो आपको स्लो डाउन कर ही देंगी। आज आप कितनी भी तेज़ भाग लो, ये डिजीज़ेस आ गई तो ये तो स्लो डाउन कर ही देंगी। तो उससे बेटर है कि पहले ही बैलेंस में आ जाएं और अपने इमोशंस को, अपने फिज़िकल सेल्फ को थोड़ा बढ़िया रखें फॉर अ बेटर लाइफ। तो मैम, थैंक यू सो मच फॉर सो मैनी इनपुट्स। लेकिन जाते जाते कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें बता दीजिए आप, जब हम किसी भी सिचुएशन में स्टक हों और हमें कोई रास्ता नहीं दिख रहा। पहला तो वो हम ऑस्ट्रिच की तरह रख लेंगे ज़मीन के अंदर सर, वो भी हमें नहीं बचाएगा। और अगर हम बाहर निकल के शेर की तरह लड़ने लगें, वो भी नहीं बचाएगा। तो जब हम रियल में स्टक हो और कोई सोल्यूशन नहीं है, अब चाहे किसी रिलेशनशिप में हो, जॉब में हो, किसी भी चीज़ में जिसमें हमें ताकत नहीं आ रही अभी उसको हैंडल करने की, तो आप बताइए कि ऐसे टाइम पे हम कैसे जिए। बिंतु देखो, ऐसा होता है कि मैं खुद अपनी लाइफ के अंदर ऐसे बहुत सारे समय से गुज़र चुकी हूँ, और जब भी मैं ऐसा फील करती थी कि अब कुछ नहीं हो सकता है, तब मैं कागज़ और कलम उठाकर बैठती थी और मैं लिखना शुरू कर देती थी। जब मैं लिखती थी तब मैं देखती थी कि मन के अंदर जितनी भी विचार हैं, चाहे वो पॉजिटिव हैं चाहे वो नेगेटिव हैं, बस वो आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं। मैं उसको दोबारा नहीं पढ़ती थी, लेकिन जब वो मैं लिखती थी वो मेरे माइंड के जंग को हटाता था। मेरे आँखों के आगे जो पर्दा था वो उठता था, और फिर मुझे वो जो सूरज था वो धीरे 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 दिखाई देता था। तो सबसे पहले अगर आपको लगे कि आप स्टक हो, आप बैठ जाओ, जस्ट बी इन ऑब्जर्वेंस। फुल्ली फीलिंग व्हाट यू आर फीलिंग इज फुल्ली हीलिंग। उसको पूरा महसूस करो। देखिए, जब बिल्कुल अंधेरा हो जाता है उसके बाद सुबह होती ही है। फील इट फुल्ली, राइट डाउन। जर्नलिंग आपका पहला स्टेप होना चाहिए। जब आपके मन के अंदर से वो सब चीज़ें निकल जाएंगी, फिर आप ध्यान करिए, विचार करिए और उस चीज़ को देखिए कि अब मुझे कैसे आगे बढ़ना है। वो आपको तभी मिलेगा जब आप पूरी तरीके से शांत होकर बैठोगे। सो गिव योर टाइम, योरसेल्फ टाइम। किसी से कोई कंपैरिजन नहीं है, कोई कंपटीशन नहीं है। आप जब भी शुरुआत करेंगे तभी पहला दिन है। स्टॉप कंपेयरिंग योर जर्नी विद द अदर पर्सन्स जर्नी। That's great. Yeah, that's a great input. उसके बाद बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप एक्शन करिए, फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल लेवल पे। फिजिकल लेवल पे काम करना बहुत ज़रूरी है। चाहे आप उसको उठकर खाना बनाइए, आपको अगर खाना बनाना पसंद है, पेंटिंग करिए, नाचिए, दौड़िए, बाहर जाइए, दोस्तों से मिलिए। फिज़िकली आपको वो फिज़िकल, जब आप देखते हैं ना वो स्टक की फीलिंग कि आपका पैर किसी ने बांधा हुआ है, आपको किसी ने बांधा हुआ है, तो आपको फिज़िकली मूव करना पड़ेगा। दूसरा है इमोशनली। जैसे कि हमने नेगेटिव थॉट्स का बार बार मनन और चिंतन किया है, वैसे ही हम पॉजिटिव एफर्मेशंस का चिंतन करना शुरू करें। चाहे वो एक प्लेन सब्जेक्ट या प्लेन लाइन क्यों ना हो, कि मैं
अपने जीवन के प्रवाह के साथ प्रवाहित होती हूँ। I believe in myself. I am now willing to receive good graciously now. उस एफर्मेशंस को बार बार बोली। जैसे हम मंत्र का 108 बार उच्चारण करते हैं, ऐसे ही पॉजिटिव एफर्मेशंस का कम से कम 21 बार उच्चारण करिए। जो 30 गोल्डन मिनट्स होते हैं ना बिफोर वी स्लीप, उसमें करिए, ताकि आपके माइंड के अंदर, आपकी नींद में वो जाए, और फिर वो जो फीलिंग ऑफ बीइंग स्टक थी ना, वो जब आप सुबह उठे वो अनस्टक हो जाए। मॉर्निंग हैबिट्स बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब हम बहुत स्टक होते हैं, हम डिप्रेशन में होते हैं। मैं क्यों बोल रही हूँ डिप्रेशन? आपका माइंड आपको डिप्रेस करना चाहता है। आप 6 बजे नहीं उठना चाहते, आप 10 बजे उठना चाहते हैं, 6 बजे उठिए। मॉर्निंग में वही एफर्मेशन करिए, अपनी बॉडी को मूव करिए, फ़ोन को हाथ मत लगाइए, अपने सांस पर ध्यान दीजिए, उगते हुए सूरज को देखिए। और हमारे सारे लोगों के कोई ना कोई तो रोल मॉडल्स होते हैं, अगर वो कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं। NLP में एक चीज़ होती है मॉडलिंग, लाइफ के अंदर होती है मिररिंग। वी आर द 5 people वी बी विद, वी आर द सम टोटल ऑफ दोज 5 people। तो वो आप करिए, आगे बढ़ेंगे। जब आप अब थोड़ा आगे बढ़ेंगे, स्मार्ट गोल्स बनाइए। हाँ जी। जब आप स्मार्ट गोल्स बनाएंगे, आप और आगे बढ़ेंगे, और आपको दिखेगी कि आपको ज़िंदगी अब कैसे जीनी है। फ्यूचर दिखने लगेगा, स्किल्स दिखने लगेंगे। अगर वो नौकरी है मिलेगी, बिजनेस चलेगा। रिलेशनशिप काम नहीं कर रही है, कोई बात नहीं, बात करिए अपने पार्टनर से। नहीं चल रही है, कंप्लीट दिस रिलेशनशिप, यू कैन बी फ्रेंड्स। और इफ़ यू डोंट वांट दिस टॉक्सिसिटी, जस्ट टेल, मूव ऑन, लव योरसेल्फ। हेल्थ के लिए टेक एक्शन नाउ। Unless and until you are in a situation which your mind tells you कि नहीं हो सकता, आप उसी माइंड को रिवर्स कर सकते हो एंड यू कैन से नो, आई कैन डू इट। ये हो सकता है। सो ब्यूटिफुल। सो फ्रेंड्स, एक बहुत इम्पॉर्टेंट लाइन जो है वो ये है, बाहर नहीं देखना, अपने आप को देखना है, अपने आप को ठीक करना है। एंड अगेन आई विल से, जब स्टक हो जाओ, प्लीज़ अपने आप ही उस चीज़ को मत सॉल्व करने की कोशिश करो। अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुए तो प्लीज़ कुछ हेल्प लो, लेकिन सफ़र मत करो। बहुत सारे ऑप्शंस आपको निकल आएंगे जब आप उस पर वर्क करना शुरू करोगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड ऑफ सुरखाप टॉक्स। एंड मैडम जी, थैंक यू सो वेरी मच। डीप ग्रैटिट्यूड। और कभी कभी कहते हैं ना कि जब हम अपने पॉन्ड से निकलते हैं, तब हम उस नदी की तरह बहते हैं और वहाँ मिलते हैं जहाँ समुद्र होता है। वाह। सो आई विश ऑल द व्यूअर्स द सेम। एंड फ्रेंड्स, what we have learnt in this episode is, whenever you are getting totally stuck in any area of your life, please dig deep within. आप अपने अंदर झांकिए, आंसर वहीं से आएगा। लेकिन बहुत टाइम नहीं आए तो ज़रूर हेल्प लीजिए। ये नहीं हो कि आप एक बहुत लंबे समय तक सफ़र कर रहे हैं, वो आपको कहीं नहीं पहुंचाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस, एंड वी विल मीट अप अगेन सून।